students, how are you all? I hope you all are very good. Welcome back to the channel with the new chapter of class 3rd science, chapter number 10, that is about light, sound and force. Students, in this session today, first of all, we will learn about these two forms of energy, that is the light energy and the second is sound energy. And then we will learn the very important concept of force which we use on a daily life and almost in every other second. All right. So we will understand the light, sound, and the force today. So first of all, we have to take the objects that give us light. यहाँ पर डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स आपको गिवन है. आपको उन ऑब्जेक्ट्स पर टिक करना है जो आपको लाइट प्रोड्यूस करते हैं या लाइट प्रोवाइड करते हैं. बेसिकली सोर्स ऑफ लाइट है. All right. So first of all, they have given you this lamp. A lamp give us light. So we will pick this object. Secondly, what is it? It is a candle and candle भी हमें light provide करता है. Then third is bulb and bulb also give us light. Then it's a dictionary or book. So book के through light produce नहीं होती है. Then this is diya. All right. And diya again आपको light provide करता है. And school bag or the bag do not give us light. Now, first of all, the concept of light. So, light helps us to see the things around us. We know that the sun is the main source of heat and light on the earth. Okay? The sun gives us light and at night we use different objects like a bulb, diya, candle or a lamp to get light. What they're saying is student कि light क्या है? Light एक ऐसी form of energy है जिसके through जो different objects हमारे surroundings में होते हैं they become visible to us. आप इन सभी चीजों को देख पा रहे हो because of light only. Alright? And if we talk about sun, तो sun आपका main या primary source है heat and light का on the earth. Alright? Sun हमें light provide करता है, sun हमें heat provide करता है. And then at the night time पे हम different objects का use करते हैं because night time पे sunlight is not available to us, है ना? तो night time पे हम different objects का use करते हैं जैसे कि bulb, दिया, candle, lamp, so that we could get light. So all of these objects, ये सारे objects को students क्या कहा जाता है? Luminous objects कहा जाता है. Why? Because they have the light of their own. ठीक है? ये सारे objects जो examples मैंने आपको यहाँ पे given थे, sun, बल्ब, दिया, कैंडल एंड लैम्प, ये ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स हैं. व्हाई? बिकॉज दे प्रोड्यूस देयर ओन लाइट. ये अपनी खुद की लाइट प्रोड्यूस कर सकते हैं. बट द थिंग्स दैट डू नॉट हैव लाइट ऑफ देयर ओन, ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो लाइट प्रोड्यूस करते हैं बट इनकी अपनी खुद की लाइट नहीं होती है, दीज आर नोन एज नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स. वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है? सो मोस्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं हमारे सराउंडिंग में जैसे कि टेबल, चेयर, वेजिटेबल, बुक्स, they do not emit light. ये अपनी लाइट प्रोड्यूस नहीं करते हैं and therefore they are called non-luminous objects. ठीक है? So how can we see these non-luminous objects? जब non-luminous objects जो हैं they cannot emit light, so how are they visible to us? So they are visible to us only when light falls on them. किसी भी luminous source के थ्रू जो लाइट प्रोड्यूस होती है वो जब इन non-luminous objects के ऊपर फॉल करेगी then only वो non-luminous objects हमें visible होते हैं. All right, you can see these are the luminous objects and these are the non-luminous objects. ठीक है? Second, we have shadow. Hang a wall in a dark room with the help of a string. Now throw the light with a torch on the wall. What do you see on the wall? You will find a dark patch of the ball on the wall and this dark patch is a shadow of the ball. What they're saying कि आपको एक डार्क रूम में यानी कि जहाँ अंधेरा है इस रूम पे एक बॉल को आपको हैंग करना है स्ट्रिंग की हेल्प से. देन आपको लाइट क्या एक टॉर्च के थ्रू लाइट को उस बॉल के ऊपर थ्रो करता है. व्हाट यू विल सी ऑन द वॉल, आपको फिर वॉल पे क्या देखने को मिलेगा? आप देखोगे कि उस वॉल पर उस बॉल का एक डार्क पैच देखने को मिल रहा है. सो वो जो डार्क पैच है वो उस बॉल की शेडो है. All right, so we can say the dark shape of an object made on a surface is called shadow. ठीक है? किसी भी एक ऑब्जेक्ट की जो डार्क शेप आपको देखने को मिलती है किसी भी सरफेस पे, that is called shadow. Like here you can see यहाँ पे एक गर्ल है and गर्ल का यहाँ पे एक डार्क पैच आपको देखने को मिल रहा है. This is the shadow of this girl. Now what are the features of shadow? Shadow के क्या features है students? Number one, a shadow is always formed on the opposite side of the source of light. Shadow हमेशा
सोर्स ऑफ लाइट के ऑपोजिट साइड पे बनती है, ठीक है। सेकेंडली, शेडो का जो कलर होता है यूजुअली ग्रे और ब्लैक होता है। थर्ड, अ शेडो बिकम्स लॉन्गर एज द ऑब्जेक्ट मूव्स अवे फ्रॉम द सोर्स ऑफ लाइट। जैसे जैसे वो ऑब्जेक्ट सोर्स ऑफ लाइट से दूर जाएगा, उतना उस शेडो की जो उस ऑब्जेक्ट की जो शेडो है वो लॉन्ग होती चली जाएगी। ऑलराइट, ऑन अ सनी डे पे जो शेडो होती हैं वो लॉन्गर होती हैं मॉर्निंग एंड इवनिंग टाइम पे, एंड शॉर्टेस्ट होती हैं एट द नून टाइम। यू कैन सी, ये इवनिंग टाइम की शेडो है एंड ये मॉर्निंग टाइम की शेडो है। मॉर्निंग एंड इवनिंग टाइम की शेडोज जो होती हैं यूजुअली कैसी होती हैं, आपकी लॉन्गर होती है। वाई? बिकॉज उस टाइम पे सन की रेस स्लैंटिंग होती है ऑन द ऑब्जेक्ट, ठीक है, द सन इज लो इन द स्काई। बट नून टाइम पे जो शेडो होती है ऑब्जेक्ट की वो काफी शॉर्ट होती है, बिकॉज इस टाइम पे सन बिल्कुल ओवरहेड ऑफ द ऑब्जेक्ट होता है एंड सन की रेज डायरेक्टली स्ट्रेट फॉल कर रही है ऑन द ऑब्जेक्ट, बिकॉज इट्स वेरी हाई अप इन द स्काई ड्यूरिंग द नून टाइम, ठीक है। Now the next concept we have is of sound. What is sound? So in the daytime we hear different sounds. Daytime पर आपको different sounds सुनने को मिलती है, जैसे कि barking of dogs, chirping of birds, है ना, people talking, ringing of telephone, doorbells, radio, television, loudspeakers. So ये सभी different types के objects and things हैं जो कि during the daytime बहुत ज़्यादा different types of sounds को produce करते हैं. When we walk or laugh, ठीक है, सॉरी, व्हेन वी टॉक और लाफ, जब आप बातें कर रहे हैं, लाफ यानी कि हंस रहे हो, देन ऑल्सो हम भी क्या कर रहे हैं, साउंड ही प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। तो साउंड इज प्रोड्यूस व्हेन अ सब्सटेंस और मीडियम ऑब्जेक्ट वाइब्रेट। साउंड कब प्रोड्यूस होती है, जब कोई एक सब्सटेंस या मीडियम ऑब्जेक्ट जो है वाइब्रेट करता है। अब नाउ द ऑब्जेक्ट, अब वहां पे जो ऑब्जेक्ट है वो कुछ भी हो सकता है, इट कुड बी एयर, वाटर, वुड और एनी अदर थिंग, ठीक है। सो व्हेन दीज सब्सटेंसेस वाइब्रेट, जब ये सब्सटेंसेस स्टूडेंट्स वाइब्रेट करते हैं, देन दे प्रोड्यूस साउंड, एंड आवर ईयर्स, हमारे ईयर्स जो हैं इन वाइब्रेशंस को डिटेक्ट कर लेते हैं, एंड देन इट अलाउ अस टू हियर द साउंड। ऑलराइट, दिस इज द बस हॉन्किंग, लाउड स्पीकर साउंड, बर्ड्स चिर्पिंग। सो ये भी सभी क्या है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ साउंड हैं। नाउ चिर्पिंग बर्ड्स, सॉन्ग एंड म्यूजिक, ये सभी प्लेजेंट एंड सॉफ्ट साउंड्स होती हैं, एंड ये हमारे ईयर्स के लिए सूदिंग होती है, एंड ऑल्सो वी इंजॉय दीज साउंड्स, ओके। बट द साउंड्स ऑफ फायर क्रैकर की साउंड, व्हीकल्स के जो हॉर्न होते हैं, लाउड स्पीकर्स हैं, इन सब की साउंड्स काफी लाउड एंड अनप्लेजेंट होती हैं। दे डिस्टर्ब अस, ये साउंड हमें डिस्टर्ब करती है, एंड ऑल्सो इरिटेटेड हम फील होते हैं बिकॉज ऑफ दीज साउंड्स। सो लाउड एंड अनप्लेजेंट, जो लाउड एंड अनप्लेजेंट साउंड्स होती है स्टूडेंट, उन्हें बोला जाता है नॉइस, ओके। एंड नॉइस हमें क्या करती है, इट डिस्टर्ब्स अस, एंड ऑल्सो इट इज बैड फॉर अवर हेल्थ। सो वी कैन अवॉइड मेकिंग नॉइस। अब नॉइस को हम अवॉइड कर सकते हैं इन द फॉलोइंग वेज। हाउ? नंबर वन, बाय स्पीकिंग सॉफ्टली, सबसे पहले सॉफ्टली हमें बात करनी चाहिए। सेकेंडली, बाय अवॉइडिंग द अननेसेसरी यूज, ठीक है, जो अननेसेसरी यूज हम करते हैं हॉर्न्स का वाइल ड्राइविंग स्कूटर्स, मोटरसाइकिल, कार और एनी अदर व्हीकल, तो उसे अवॉइड करना है, अननेसेसरी हम ब्लो नहीं करेंगे हॉर्न्स को। एंड थर्डली, आप म्यूजिक या टेलीविजन कुछ भी प्ले कर रहे हैं तो आप एक लो वॉल्यूम पे उसे प्ले करेंगे। अमेजिंग फैक्ट दैट लाइट ट्रैवल्स फास्टर देन साउंड, लाइट जो है स्टूडेंट साउंड के कंपैरेटिवली ज्यादा फास्टली ट्रैवल करती है, एंड दैट इज व्हाई आप लाइटनिंग को पहले देख लेते हो बिफोर वी हियर द साउंड ऑफ एनी थंडर। ऑलराइट, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक वी हैव इज ऑफ फोर्स, पुशिंग और पुलिंग, ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट को क्या करना, पुश या फिर पुल करना, दैट इज कॉल्ड फोर्स, ठीक है। फोर्स क्यों अप्लाई किया जाता है, टू डू एनी वर्क, किसी भी वर्क को करने के लिए आप फोर्स अप्लाई करते हो। फोर्स कैन स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट, फोर्स के थ्रू एक मूविंग ऑब्जेक्ट को स्टॉप किया जा सकता है। फोर्स किसी भी एक मूविंग ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन को चेंज कर सकता है, एक ऑब्जेक्ट की शेप को आप चेंज कर सकते हो बाय अप्लाइंग फोर्स, एंड हेंस वी कैन से कि फोर्स व्हाट डूज, फोर्स क्या करता है, फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव, स्टॉप या उस ऑब्जेक्ट की शेप चेंज कर सकता है। Now the force that reduces the speed or stop a moving object is called friction. एक ऐसा फोर्स जो किसी एक मूविंग ऑब्जेक्ट की स्पीड को रिड्यूस कर सकता है या फिर उसको स्टॉप कर सकता है, उस फोर्स को कहा जाता है फ्रिक्शन फोर्स,
ठीक है। एंड फ्रिक्शनल फोर्स कब डेवलप होता है? ये किसी भी टू बॉडीज के बीच में डेवलप होगा व्हेन दे टच ईच अदर। इट इज ड्यू टू फ्रिक्शन। ठीक है, फ्रिक्शन की वजह से ही स्टूडेंट्स वी आर एबल टू वॉक ऑन द सरफेस। ठीक है, इफ देयर वर नो फ्रिक्शन, अगर फ्रिक्शन फोर्स नहीं होता तो हम फ्लोर पर स्लिप करते रहते हैं, वी वुड नॉट बी एबल टू इवन वॉक आल्सो। ऑलराइट, यू कैन सी यहाँ पे बॉय क्या कर रहा है, डोर को पुश कर रहा है। सो हियर द बॉय इज आल्सो अप्लाइंग द फोर्स। यहाँ पे बॉय एक ट्रॉली को पुल कर रहा है, दिस इज आल्सो द फोर्स बीइंग अप्लाइड। एंड यहाँ पे द बॉय इज किकिंग अ बॉल एंड hence we can say that this boy is also applying force on me. All right, now let us recall it. So number one, what? कि जो main source of light है on the earth, that is sun. The objects, वो objects जो अपने खुद की light produce करते हैं, they are called luminous objects. And जो objects light produce नहीं कर सकते, they are called non-luminous objects. The dark shape of an object, किसी भी एक object की जो dark shape एक surface पे मिलती है, that is called shadow. एंड द शेडो इज ऑलवेज फॉर्म। एक शेडो हमेशा कहाँ बनती है? जो सोर्स ऑफ लाइट होता है उसके ऑपोजिट साइड पे बनती है। साउंड, साउंड क्या है? इट इज अ वाइब्रेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। लाउड एंड अनप्रेजेंट साउंड्स को हम नॉइस कहते हैं। पुशिंग और पुलिंग, किसी भी ऑब्जेक्ट को पुश या पुल करना इज कॉल्ड फोर्स। एंड इफ देयर वर नो फ्रिक्शनल फोर्स, अगर फ्रिक्शनल फोर्स नहीं होता तो हम वॉक भी नहीं कर पाते, वी वुड कीप स्लिपिंग ऑन द फ्लोर। ऑलराइट, chalo, so the chapter is completed. These were the concept of force, sound and light, and I hope now you must have understood its importance and also their concept. Let's meet in the next session. Till then, keep going well, learn well, take care of yourself, and thanks to everyone.